This conference will now be recorded. Many people sell just because they think it is overbought. It happens with everyone. It happens with me as well at times. So, I mean, I can't share my system here, but my system was very, I mean, this is where it crossed my extreme excellence level. It has gone here as well. It has gone here as well. For me, it's not a long, it's a consistent short for me personally. So I've been trading short only. Can it go to 5600, 5500? Can, absolutely it can. But if your position is beyond what you can afford, because if you see the stock has gone from Polycap example, it's gone in this chart only, it's gone from 2800 to 5400. Can it go to 5600? Absolutely. Can it go to 5800? Yeah, why not? I mean, we can't stop it. If there is exuberance, you can't stop a stock. Only thing that can you can do in uh, this kind of time is not to get overwhelmed that I have to trade at every space. And then hedging is the key here. If you can hedge it properly, then hedging is expensive because it's very volatile stock. Long hedging is very expensive, so that's why I'm going short hedging. But someone asked me that why don't you buy, like when you sold at 50 to 90, why don't you buy a call? So if I sold at 50 to 90, when I sold at 50 to 90, the 5300 call was 200 odd rupees. So if this happens, that call will collapse pretty fast. So, and you won't make a lot of money. With puts, I'm more like, because I am more of a short volatility kind of a trader. I'm scared of long volatility, so I exit. I don't keep option position, long positions for a long period of time because the decay factor is always there. That's my mindset. You might look at it other way. But cutting the long story short, coming back to your question, the main thing is that when your position size is out of shape, then you will get stressed. So try to follow the position sizing structure more carefully next time if you have a problem. Yes, understood. Yeah, that definitely was an issue in my case. Just to add on to it, sorry if I'm taking too much time. Just to add on to this, like when you take this trade as future shorts or future long and then sell put or Hmm. calls, is it okay if we take these trades as selling the calls or selling the puts? Like even though we may make less, but still we may not lose much. Like in case So of 50 to as, 90, as a trader, like no, no, like yeah, when we at sold 50 at to 50 to 90 90, when you initiated a short, yeah. yes. Can I Okay. just go as sell call in Yeah, you sell can do 5,300 calls? yeah, yeah, that will like margin wise, it's the same thing. I mean, if you sell a call or sell a future, I think margin wise, it won't be a very large difference. It would be the same. So yeah, but Mhm. selling calls is limited premium, maximum risk, because although future has the same risk, but the deltas are different. I mean, for example, what I'm trying to say is, suppose you sell at, I sold a future, you sold a call, right? Your call is for say 150, 60 bucks, for example. If this goes 300 points, if it goes 200 points, your call base will be 80, 70, 80. I'll make 200 points, but I am hedged. But on the other side, if your protection is also 150, 60, so it's a choice. You're making, what I'm trying to say is, you're in high volatility, you can do that. But in this is we are taking Polycab example only. But if you do it the same way some other stock which has low volatility, you won't get a lot of premium, for to make money out of it. And second part is, when the volatility is high, then the option premiums remain high for a period of time, until unless there's a large move. And you have seen, and we're discussing it for the past 1.5 week or so, that Polycab's future options don't give away their gains pretty easily. So even if you sold, like we were discussing, the 4800 put, uh, which is traded from 50 to 70 to 80 rupees because it's October. So what I'm trying to say is that the option premium, because they are volatile stock, the premium decay will not be that much. So future we might exit at say 100 point.
option you might only get 20. But risk is high. If you hedge it, for example, short call, buy call, sell a call of 5300, 5300 and buy a call of 5500, something like that, then also the premium, because premiums are really high, you won't make a lot of money out of it. So again, it's not like one size fit all, as I keep on saying. You have to understand volatility, you have to understand different Greeks, their impact on other things. That's where you'll make money. So it's not like, that's why some people ask me, sometimes you sell a call, sometimes you buy a call with as a hedge. So it all depends on volatility, days to expiry, and what I'm expecting from the market. So you can do it. Again, cutting the long story short, you can do it, but limited reward versus unlimited risk. In future also unlimited risk, but unlimited reward as well. So I mean, it's a choice. Noted. Noted. Yeah. Thank you so much. Uh, Good afternoon, sir. Yep. Good afternoon. Sir, my question is, most of the time the mind is focused on like during the day, particularly like if you are going with the index. Hmm. So most of the time the mind is focused on next 30 minutes, 1 hour, and at max 2 hours. Hmm. And in this event, what happens is we lose the larger move or missed. Like suppose I bought an option, let's any call or put anything, and the trade is moving in favor. So I bought Hmm. at 150 Hmm. and sold at 200. Okay. Like it may be within 15 minutes or half an hour, max 1 hour. Yeah, But yeah. at the end of the day, we will find that the same option was trading at 650, 600, 700. Yeah. So the mind is generally focused on very smaller period, like maximum 1 hour, 1.5 hour, or even lesser than that, 15 to 20, 30 minutes plus. Yeah, the reason for this is, first of all, you don't plan any of the moves. You just, okay, a breakout कर लिया, so let's buy a call or a put or whatever. So there is no trade planning before the trade. If there were a trade planning in this case, then you would have known, okay, okay, this is my risk, this is my reward. I'll go for the reward. And secondly, again, this is what we call binary mindset. You know what is binary? Binary is 0 1 0 1 0 1. 0 1 means Yes, sir. it's either 0 or 1. That's the biggest problem with the retail trader. By retail trader, as I said, retail trader is not by capital but by mindset, according to me. So it is like they go trade by trade. So it's either this or that. Either ये up trend है या down trend है. Either ये 200 point जाएगी. That's why because of the binary mindset, it's और कभी-कभी ये भी होता होगा that you have exited a target, but and it came down and hit your stop loss. I mean, you could have been saved as well. So you have to decide what kind of trader you are. People who look for larger moves, like if your option stop loss is say 20 points or 50 points, for example, and you are expecting like suppose Bank Nifty, you have bought an option for, like the other day, 300 odd, I bought an option, 250 was stop loss. Although stop loss was hit, I give stop loss on Outlook Premium because a lot of people have smaller capital, but I held on to that position. I sold at 850 and then at 11 1200, whatever, the 1150, I think trailing stop loss was that. So for me, I can afford a larger stop loss for a larger move. So you can't do that okay, मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ और टारगेट मेरा 500 पॉइंट है, मल्टीपल टाइम इट विल हिट. So you have to decide what you want to do. Do you want to be a short term trader? Short term trader का तो यही है, the concept of R, which I'm not going to explain much. It's part of the mentorship, but an important part of position sizing. And anyway, what is the risk versus reward? कि मैं 20 पॉइंट कमा के 40 कमा रहा हूँ. I have to do multiple trades, and I 7 out of 10 trades should make money, then you make money. But you can't do both. It's that problem ki I want to be an investor as well. I want to be a trader, and I want to be an investor. You can't do both. So if you are a short term trader,
you get your 50, 60, 70 points, that's good. If you are a positional kind of a trader, तो option ले दूर की, you can't be a positional trader with a weekly option because the decay will be very fast. So you have to understand what you want to do. Many people like, okay, I want to see 300 point move, पर मैं option weekly ले रहा हूँ. Weekly वाली तो it will keep on decaying. One of the days you will make money as well. किसी दिन आपको पैसे बनेंगे भी, but at For least rare, that is very rare, sir. Hmm. And वही कह रहा that's हूँ also very means it is only by chance because most of the time like ना. इंटरडे Yeah. में फ्लक्चुएशन होता है तो हम लोग जैसे अगेंस्ट में आता है निकल लेते हैं और वो मतलब बहुत मुश्किल होता है टू हेल्ड ऑन टू दैट पोजीशन. That's why I'm saying is pay more premium and go into at least 30 to 40 days expiry कि उसका decay कम हो. decay कम होगा तो I mean you can put decay भी कम है, stop loss भी बड़ा है, तो you can hold on to that move. You know what I'm saying? जैसे 300 पॉइंट की आपने लॉन्ग ऑप्शन ली, मैंने एक ट्रेड दिया था विच वाज अ रिस्की ट्रेड, आई पुट इट इन प्रीमियम 290 की स्टॉप, 290 का वो था stop loss of 190, so 100 point stop loss, which is very large for a lot of people, but that is an October option which has roughly 40 days to expiry. उसके अंदर although we will not go till पर उसके decay factor कम है, तो उसका थीटा उसका छोटा है, और उसमें बिकॉज आपने बड़ा स्टॉप लॉस दिया है तो फ्लक्चुएशन जो छोटी फ्लक्चुएशन है, नॉइज बेस्ड फ्लक्चुएशन है, वो आपको हर्ट नहीं करेंगी. सो आई थिंक that is, if you want to hold on to things, that's what I'm trying to say is, if you want to hold on to something, तो अगर आपका 100 पॉइंट का रिस्क है तो एटलीस्ट 200-300 पॉइंट का रिवॉर्ड भी होना चाहिए, तो टेक दोज ट्रेड्स इफ यू वांट टू होल्ड ऑन टू लार्जर पोजीशंस. बाकी आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू एनालाइज them. अगर आप छोटा, आप 5 मिनट के ऊपर आप 300 पॉइंट वाला एनालिसिस नहीं कर सकते ना, 500 पॉइंट वाला 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप 300 पॉइंट का एनालिसिस नहीं कर सकते. अब ये जो चार्ट सामने खुला हुआ है, ये पॉलीकैप का है, ये एक डेली का चार्ट है. तो अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके 4300 4200 यहाँ जाता है, तो ये अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, दैट इट इज अ डेली चार्ट. पर मैं पांच मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके आई कांट हैव अ टारगेट ऑफ, इट्स द सेम एनालॉजी है. अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको शॉर्ट टर्म के छोटे टारगेट्स ही लेने पड़ेंगे, छोटा स्टॉप लॉस है, आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट 10-15 मिनट वाला चार्ट होगा. अगर आप पोजिशनल हो तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग 5 मिनट के चार्ट से नहीं कर सकते. एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ. पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर का चार्ट होगा, डेली है तो अच्छा है, तो ताकि आप बड़े मूव कैप्चर कर सकें. तो ये आपका माइंडसेट बनाना पड़ेगा. और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली का चार्ट देख रहे हो और कमा रहे हो 40 पॉइंट, वो भी वर्थ नहीं है. So again, that is what I mean कि you have to be sure about what you are doing, and that is where it counts. Most people don't know what they're doing. That's the problem. Someone asked about heavyweight stocks like HDFC and Reliance are almost oversold. Can they play a role if there's upcoming bounce? Short. I mean, HDFC, Reliance, they're dead stocks. I mean, to be very honest, they are not good stock. खत्म हो चुकी है इनकी. They are in a mature trend. बहुत साल हो गए इन स्टॉक्स को. दे विल नॉट डिलीवर मच. हाँ, ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा. ये एचडीएफसी है, ओवरसोल्ड है, बाउंस आ जाएगा, उससे कुछ निफ्टी स्टेबलाइज हो जाएगी. बट यू आर, आई मीन, अगेन आई डोंट ट्रैक दी स्टॉक्स. आ सकती है, दे आर ओवरसोल्ड, बट दे कैन स्टे ओवरसोल्ड. यहाँ से अगर रिलायंस का 1 मिनट चार्ट देख लेते हैं, मैं दोनों ही ट्रेड नहीं करता बिकॉज आई डोंट लाइक दी स्टॉक्स, बट इट्स नॉट दैट यू शुडंट. अब चार्ट को देख के ही आवरली है, इसको डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो अगेन इफ यू सी फ्रॉम 2022 स्टार्टिंग, क्या किया रिलायंस ने? what has it given? I don't know why there's so much, why people love this stock so much, but it hasn't done anything. जियो आया, कहीं कुछ आया, कहीं कुछ चला गया, किया क्या स्टॉक ने? नथिंग. It is in a shell. There are multiple opportunities in Reliance. It can still go to 20 to 2200 2250. अगर इसी रेक्टेंगल को देखें, HDFC भी लगभग यही कर रहा होगा. Yes, they can bounce again. क्या किया HDFC ने पिछले 1200 से लेके, इसको भी निकाल दें तो 1200 से लेके 500 रुपए की मूव है ये पूरे. इसमें कब से चल रहा है ये?
ये है स्टॉक, क्या किया 1600 से लेके रफली 1400, 200 रुपए की मूव है। वो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं। जब आई मीन आप उसकी कोरिलेशन देखिए ना, इसके साथ मैं इसको बैंक निफ्टी को कोरिलेट करके देखता हूँ। तो अगर आप कंपेयर करें तो लगभग सेम ही है वैसे तो, पर परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो ये 3% आप पे है, बैंक निफ्टी 34% आप पे है। व्हाट्स द यूज, वैसे मूवमेंट सेम ही है लगभग, बट बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई भी लगा दिया, उस वो लोअर एंड पे ही रहा। बैंक निफ्टी कहाँ से चलती गई ऊपर, इसने वहीं पे ही उसी रेंज के अंदर रहा। सो दैट्स आई मीन सेम हम इसके साथ कर सकते हैं। अगर मतलब बैंक निफ्टी, हम कहते हैं कि बैंक निफ्टी का मेन स्टॉक है ये, ऑल्दो है भी है, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है, वो है, बट I mean, what has the stock given? But I don't know what's the love for people for these stocks which do nothing. रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम निफ्टी के साथ कंपैरिजन कोरिलेशन कर लेते हैं। निफ्टी कहाँ से कहाँ चली गई, और आप भी देखें अगेन, इस पीरियड में निफ्टी इज अप 13.5%, दिस इज -3%। तो क्या, व्हाट हैज इट एडेड? अब हाँ चल जाएगा तो मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इसका कोरिलेशन देखें तो ये तो मतलब गिर ही रहा है, निफ्टी ने हाईज मारे हैं, यह पहले निफ्टी के साथ चला है। बट अगेन, coming back to your question, yes, it can move a little bit, they can bring nifty higher, but I still feel 19,200 300 का टारगेट अभी पेंडिंग है। तो इसलिए आई मीन I think more, it will be, the rallies will be sold into, so क्विक गेन्स, जहाँ भी आपको जल्दी जल्दी पैसा बनता है वहां पे बना के निकल जाइए, फिर से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। दैट्स व्हाट आई मीन, बिकॉज आई मीन रिलायंस की जगह अब बाकी स्टॉक, अब आईटी में भी स्ट्रेंथ मुझे अभी भी जो पुल करेगा निफ्टी को, आई थिंक आईटी विल बी मोर showing more strength. I mean, Tata Consultancy, TCS, बहुत देर के बाद it's getting out of that range, uh, and finally started moving higher. So I think all-time highs ही होंगे most probably. No, not all-time highs. But still, it's like इस range से कितनी देर बाद निकल रहा है, अब टेस्ट करेगा तो it can go back to 4,000. So my bets will be on, because Nifty is falling, these companies are comparatively stronger. So because these companies are stronger, so we should always bet on strong companies rather than, overbought, oversold companies. They are oversold for a reason. People are, I mean, not interested. Funds are not much interested into Reliance or in HDFC beyond a point. So, and so, I mean, if you see, um, TCS is moving out of the range. I was looking at Tech Mahindra is moving out of the range. So IT, I mean, if I have to buy, then IT will be same. You see, Tech Mahindra, I'm very bullish on Tech Mahindra. अभी मेरी जोन से थोड़ा बाहर है, सो आई एम लिटिल, बट ये मेरी जोन से बाहर रह सकता है काफी देर, मुझे लग रहा है कि आई माइट हैव मिस्ड इट। आई थिंक इट कैन गो हाई, बट आपको आई मीन इट विद टीसीएस एंड टेक महिंद्रा और भी एक दो देख लेते हैं, बाकी जो मेरे फेवरेट थे वो ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं। Like Tech Mahindra can come back, test it, and move higher if Nifty has to go higher. So Infosys, मुझे अच्छी नहीं लगती कंपनी, बट एनीवे इट डजंट मैटर। अगेन टू मेनी गैप्स, आई डोंट लाइक इट। Infosys, I'll not be buy, I mean it can go higher, मैं मेरे को इतना ज्यादा इन्फी अच्छी नहीं लगती मेरे को। मतलब छोटी कंपनीज, persistent system, one of my favorite, had gone really high. persistent systems अभी तो बहुत ज्यादा चला गया ऊपर, बट अभी कोई नीचे आने के आसार भी नहीं लग रहे। यहाँ से 6400 भी चले जाएगा, आई एम नॉट टचिंग इट बिकॉज आउट ऑफ माय जोन, लॉन्ग जोन्स के बाहर चला गया है। So you might have seen that I'm not giving a lot of long trades in premium. The reason again is कई stocks जिनको मैं बहुत ट्रेड करता हूँ वो मेरी जोन से बाहर चले गए, like LTTS जोन से बाहर चला गया है। Although still, I mean, all-time high. But again, आपको टेक महिंद्रा वाला पैटर्न दिखेगा, पर TCS एंड टेक महिंद्रा वाला पैटर्न है, पर ये उससे बाहर निकल चुका।
टेक महिंद्रा और टीसीएस अभी इससे निकल रहे हैं. So maybe these short mid cap IT companies might underperform or go in a sideways consolidation while the large cap tech companies जिसमें LTIM भी है, again LTIM भी काफी चल गया है अभी. I will not buy it. And on a dip I might. अब यहाँ ये dip कर रहा है. Again same एक तरह के charts हैं सारे. थोड़ा डिफरेंस है. बहुत ऊपर से नीचे आए हैं, कंसोलिडेशन की है, उसके बाद मूव कर रहे हैं. So I'll be more comfortable buying IT. IT में भी as I said सेम तरह के चार्ट्स हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. LTIM, LTTS, persistent थोड़ा चला गया, TCS, Tech Mahindra, everything is trying to move out in a falling market which has strengths. So I think this is sector to watch out for. Chemicals मुझे था कि चलेगा, but too many news flows are coming in. Deepak Nitrite I'll for the time being avoid. जैसे गिर रहा है around 1920s range में आएगा फिर ले लेंगे. But again consolidation whenever they'll move. Maybe I like these Deepak, Naveen Fluorine, and your what do you call SRF. ये तीन FNO वाले स्टॉक में अच्छे लगते हैं. बट अगेन कंसोलिडेशन वाइज देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो आने वाले सेक्टर्स नेक्स्ट मूव जब भी आएगी, वेन एवर निफ्टी का, ये निफ्टी के बाहर वाले स्टॉक्स भी हैं, कई निफ्टी के बीच में भी हैं. सो सेफ एरिया लग रहा है कंपैरेटिवली. नीचे आ सकते हैं अभी, बट डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है एज कंपेयर टू मेनी अदर स्टॉक्स. SRF अगेन आप देखिए कितनी लंबी कंसोलिडेशन में है. आई एम ट्रैकिंग इट. और इसमें स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू सेक्टर, there's huge strength in the structure. रीजन उसका ये है कि बाकी सारा सेक्टर गिरा, बाकी सारे स्टॉक्स अल्कालामाइन, बालाजी अमाइंस गिरे. SRM थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कंपनीज में, पर ओवरऑल केमिकल बास्केट की अगर बात करें तो ऑल ऑफ देम हैव फॉलन. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली. सो जब ये निकलेगा यहाँ से तो इट विल बी 3000 3200 रुपी स्टॉक. ऐसा ही इसका एक और देखिए चला कहाँ से है, 400 रुपए से यहाँ चला है. कंसोलिडेशन बनती है, शायद एक साल और कंसोलिडेशन करे. दैट डजंट मीन कल से हम तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट नीचे आए तो दिस इज अ गुड स्टॉक्स टू बाय एज कंपेयर टू the ones that you discuss. एक गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, I don't know. Again very good stock, होल्डिंग बनाने के लिए अच्छा. अगेन सेम कंसोलिडेशन चला कहाँ से, 1000 से कहाँ चला गया 3500, फिर एक बार टेस्ट किया, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन है. इन्फोसिस जैसा चार्ट है वैसे तो. बट अगेन these stocks, this few sectors I think are comparatively स्ट्रोंगर लॉन्ग. मतलब आने वाला ट्रेंड को ये थोड़े से महंगे लग रही है IT, बट रिलेटिव सेंस स्ट्रॉन्ग है. सो विल सी. प्ले ये भी है कि फेड इज पॉजिंग, इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो इस करके भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ रही है कि दे माइट बी एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड है. बिटकॉइन का चार्ट देखें, बिटकॉइन भी यहाँ पे है, वो भी एक, उसको एक IT कंपनी की तरह अगर आप ट्रीट करें तो बिटकॉइन बता देता है. नैस्डैक, बिटकॉइन, IT. मेरा एक वीडियो है IT कंपनीज पे चैनल पे, तो आप जाके उसे देख सकते हैं. यू कैन फाइंड इट आउट. दैट विल टीच यू हाउ टू डू इट. Is Raphael system based on GAN's time study? No, there we haven't covered GAN. GAN का next year will be having a शायद मैंने बोला भी था, will have a master trading course. GAN, things that people don't know or haven't, जो कोई बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं है. But Raphael is not about GAN. Raphael is, you can say, first step towards the master program, पर इसमें ज्ञान नहीं है. राफेल में फिबोनाची है, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाते हैं, एडवांस फिबोनाची. फिर राफेल में मार्केट ज्योमेट्री है, जो मैं मार्केट ज्योमेट्री खुद यूज करता हूँ. उसमें थोड़े से बुक्स वाली नहीं है, जिस तरह मैं खुद यूज करता हूँ उसमें कई डिफरेंसेस हैं. कौन सी लाइन वर्क करेगी, कौन सी लाइन नहीं वर्क करेगी, वो है. और फिर उसमें प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं कि सिर्फ प्राइस के बेस के ऊपर, विदाउट एनी ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज और एनीथिंग एल्स, आप लगा सकते हैं, बट बिना उसके भी हाउ विल यू बी looking at it. So that's about Rafael. If you want to know more, you can DM me. So that's fine. Any other questions?
I don't follow GAN by number side, to be honest. That's a different way of looking at it. Simple number work नहीं करते. 2175 is level is a is number derived from the what I taught in Raphael. Anyone who has done Raphael can easily see why I did 20175. I look at weaknesses inside, but you see outside. I try to look at inside. वहाँ पे ही पता चलता है कि internally क्या हो रहा है. Internally market में accumulation है, distribution है, volume से नहीं, but I can't explain beyond that, but it's more like finding the internal strength. So and when internal strength happens, मैं ज्ञान नंबर की मेरा मतलब ये है कि मैं ज्ञान के नंबर एंगल वगैरह वाला काम नहीं करता. It's a different way of looking at it. That's why my courses may be a little bit expensive, but the knowledge, like Raphael की knowledge आपको नहीं मिलेगी. बेसिक फिबोनाची की मिल जाएगी, but advanced फिबोनाची की नहीं मिलेगी. Advanced price structures की नहीं मिलेगी. So that's why I don't advertise नहीं करता इसको, because that knowledge is very sacred to me. I have made a lot of money from that knowledge. जो भी मैं charts share करता हूँ वो based on that knowledge है. जो भी मैं analysis share करता हूँ based on that knowledge है. So मैं बहुत ज़्यादा लोगों को वो knowledge देना नहीं चाहता, to be honest. Only the real people who really want to use it. इसलिए मैं वो इसको beyond a point Raphael को मैं ज़्यादा नहीं करता advertise. Most of the time, mine keep anticipating moves like it will break down. Most of the time, if you enter trade, the breakout is not there, and if you wait, then price under. Again, धर्मेंद्र जो आप कह रहे हैं, it's more about आपकी पहले से ट्रेड प्लानिंग नहीं है. आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करके उनकी एडवाइस पे चलते हो. आपकी अपनी प्लानिंग नहीं है. अपनी प्लानिंग होती भी है तो आप कहते हो कि आप ज़्यादा उनको जो दूसरा बंदा कहता है उस पर फोकस करते हो. आपको ये नहीं पता दूसरे बंदे का टाइम फ्रेम क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसने एक्चुअल में ट्रेड लिया है क्या नहीं लिया. तो इसलिए यू आर लुकिंग बोथ वेज. ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. यू नीड टू नो वेयर द ट्रेंड विल स्टॉप. यू नीड टू नो वेयर. अगेन ऑल ऑफ दिस हैज अ प्रोबेबिलिटी. इट्स नॉट लाइक कि जो ट्रेंड है वो आपको 100% ही पता होगा, बट इट्स मोर ऑफ. बट ना अगर आप ट्रेंड अंडरस्टैंड कर लें तो जैसे अगर डाउन ट्रेंड है तो आप ब्रेक डाउन्स पे ही फोकस करेंगे. अगर अप ट्रेंड है तो आप ब्रेकआउट्स पे ही फोकस करेंगे. अब क्या होता है कि व्हाट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, पीपल थॉट कि 19,200 इज अ टॉप, सो दे केप्ट ऑन शॉर्टिंग 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 शॉर्टिंग. 20,100 आ गया, अब 19,900 आया, पीपल थॉट कि दिस इज, अब वो बाय ऑन डिप पे आ गए. पहले वो सेल ऑन राइज पे थे, उनको ट्रेंड का पता नहीं है. तभी इट्स इधर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन. हाँ, उसमें भी गलती होगी कभी ना कभी. आपका ब्रेकडाउन का स्टॉप लॉस है, ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस भी हिट होगा, दैट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. 10 में से 8-7 ट्रेड अगर आप अच्छे कर लेते हैं और बाकियों पे ठीक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं या उसमें रिस्क मैनेज कर लेते हैं, दैट्स फाइन. बट व्हाट हैपेंस इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड. देखिए, मैं कुछ बेचने की यहाँ कोशिश नहीं कर रहा. आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग. मैं कोई मेंटरशिप राफेल या कुछ, राफेल की मैंने बात इसलिए कि समवन आस्क्ड, अदरवाइज जरूरत नहीं है मुझे. मेन बात यह है कि ट्रेडिंग इट लुक्स वेरी इजी. आप अकाउंट खोलें, बैठ जाएं, पैसा डालें, बाय कर लें, सेल कर लें. पीपल ट्रीट इट लाइक हॉबी. दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट उसके लिए वो कुछ करना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, अपने आप पे काम नहीं करना चाहते. As I said, the questions that most people asked, like अब आप देखिए ना, I'm just saying, मैं कोई no offense, 200 300 odd people in the free group, 200 odd plus people in the views group. ठीक है, इसमें आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, जो जिस पर इसको जरा सोच के देखिएगा. 300 कुछ लोग फ्री वाले फ्री ग्रुप में है, आउटलुक फ्री. ठीक है, उनमें से 260-70 लोग हैं उसमें व्यूज वाले में, दोनों फ्री हैं. तो जो 100 कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, it's not that they don't want to, it is because it is just another group for them. किसी ने कहा मैं फ्री में ज्ञान बांटता हूँ, आ जाओ, वो कहते दे दो, हमारा क्या जा रहा है. एक्सेस लिया, एंटर किया, मन हुआ देख लिया, मन हुआ लाइक खाना खाते हुए देख लिया किसी ने क्या चैट किया, किसी, दैट इज जस्ट हॉबी.
right? अब 200 odd people are in this view group जिसके अंदर मैंने भेजा है लिंक. मैंने फ्री वाले ग्रुप में लिंक क्यों नहीं भेजा? क्योंकि पर्सन हु इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द व्यू ग्रुप, उसको यहाँ पे आने की, वेबिनार ये जो फ्री सेशन को अटेंड करने की कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा. ठीक है, मैं सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम इस एग्जांपल के साथ ही. सो व्हाट हैपेंस इज दैट अब यहाँ पे देयर आर 12 पीपल प्रेजेंट आउट ऑफ 250. ठीक है, अगर यही मैंने कहता कि 99 रुपीज का वेबिनार है, फॉर एग्जांपल 99 रुपीज का वेबिनार है और मैं उसमें डिस्कस करूंगा, कुछ सिखाऊंगा, या वो है, ये है, वो है, तो 99 रुपीज अगर लोगों ने दिए होते, तो अगर 100 लोगों ने दिए होते 250 में से, तो 100 लोग यहाँ प्रेजेंट होते. नहीं भी होते तो वो मेरे से इसकी रिकॉर्डिंग मांगते. तो दिस शोज द माइंडसेट ऑफ मोस्ट पीपल. आई एम नॉट अगेंस्ट और विद एनीवन. आई एम नॉट. और कल मैंने निफ्टी क्या कह दिया था कि मेरे को इसलिए मत कहना कि लग रही है ये स्टॉक, मेरे को बताओ, तो इसलिए नहीं आए. ठीक है, कि फिर क्या करना, और क्या ज्ञान क्या सुनना, ज्ञान तो बहुत है. बट एज आई सेड कि मस्ट सब बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, या कल मैं ये दिस माइट बी द लास्ट सेशन, इसके बाद शायद मैं कोई सेशन मत करूं. आई डोंट हैव टाइम फॉर, आई मीन इट वाज जस्ट अ थॉट कि मे बी हेल्पिंग पीपल. आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मुझे मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मेरी मेंटरशिप, ये वो. राफेल का किसी ने पूछा, मैंने बता दिया. उसको भी मैंने कहा इससे ज्यादा है तो मुझसे पूछ लेना, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता राफेल पे, और मैं ना मार्केटिंग कर रहा हूँ. ठीक है, but because it's a free session, so no one wants to join in. ठीक है, but everyone wants to make money, right? So this is how mindset is all about. This is how it is. और इसीलिए जो फिगर आता है 99% of the people lose money. जो फिगर आती है कि 99% of people lose money, या आपको जीरोधा आजकल वो पहले देता है, हर ब्रोकर देता है कि आई अंडरस्टैंड आपको करना पड़ता है 90% ऑफ ये वो. इसका रीजन क्या है? दिस इज द रीजन दैट पीपल. अब अगर कोई, मैं अगेन नॉट अगेंस्ट एनीवन, मेरे पास तो इनका चीजों का टाइम नहीं है. आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, उसमें कितने वीडियोस मैंने डाले, पहले डालता था, अब मुझे डोंट हैव टाइम. एनीवे, बट समवन जो सिर्फ सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रहा है, उसके 1 लाख व्यूज है. पीपल डोंट वांट टू लर्न, दे जस्ट वांट एंटरटेनमेंट. दे विल लूज मनी 100%. मैं 99 भी नहीं कहता, 100% पीपल विल लूज मनी. अब नहीं तो थोड़े दिन बाद हम जेपी एसोसिएट सुजलॉन ट्रेड करते रहे 1800-1900 पे, और 1900 पे लोगों के पास अब भी होगा किसी ना किसी. मैं एक फ्रेंड को जानता हूँ जिसके पास रिलायंस कम्युनिकेशन 820 या 30 रुपए का है, अभी भी है. पता नहीं वो लिस्टेड है, डीलिस्टेड है, मुझे नहीं पता, बट ही डिडंट सेल. ऐसी स्टोरीज आपको बहुत सुनने को मिलेगी थोड़े सालों में. बट पीपल डोंट वांट टू लर्न, दे वांट टू क्रिटिक यू, दे वांट फ्री टिप्स, जैकपॉट कॉल्स. मैं आपको उससे, यू विल नॉट मेक मनी. इवेंचुअली आप उससे पैसा नहीं बना सकते, बिकॉज मैं आउटलुक प्रीमियम में डेडिकेटेड इसलिए हूँ और वो चीजें काम इसलिए करती हैं बिकॉज मैं खुद उस पर ट्रेड करता हूँ. अगर मैं सिर्फ एक ग्रुप चला रहा होता ना, तो मेरी एक्यूरेसी 50% भी होती शायद, बिकॉज मैं खुद नहीं ट्रेड कर रहा. जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा मैंने आपको दे दिया. अब जो भी ट्रेड है आउटलुक प्रीमियम पे, वो मैं खुद ट्रेड करता हूँ. मेरी पोजीशन साइज आपसे बड़ी हो सकती है, चाहे मैं 1 लॉट भी ट्रेड करूं, लेट्स अज्यूम, बट ज्यादा ट्रेड करूं. अगर मैं पैसे कमा रहा हूं, आप भी कमा रहे हैं, अगर आपको लॉस है तो मुझे भी लॉस है. सो आई हैव द स्किन इन द गेम. मोस्ट ग्रुप्स, कई कई और भी होंगे, मैं किसी को अगेंस्ट या फॉर नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर एज अ ट्रेडर माइंडसेट है, और कोई भी ट्रेडर उसको एड्रेस नहीं करना चाहता. दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स. Everyone wants to have fancy systems, software, back testing, you know, fancy stuff. ये वाला भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो वाला भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब सारा डेटा होना चाहिए. तो आई मीन, बट नो वन वांट्स टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. कोटेशंस डालना, वॉरेन बफे को सुनना इजी है, अपने आप पे काम करना मुश्किल है.
but that is where the difference lies. That is where you consistency, long term growth, अगर actual में आप trader बनना चाहते हैं, तो this is the only way that you have to work hard, not on a system, because system volatility के पे को cover नहीं कर पाता. मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस बाय एट 100, सेल स्टॉप लॉस 80, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 80 का, या आप अपने रैंडमली आप एक जगह से लेते हो और आप कहते हैं 20 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया, मार्केट डजंट केयर. ठीक है ना. और प्लस पोजीशन लेना, पोजीशन को चलाना, यू नो ऑल दैट, मुझे बार बार एक बात करने की जरूरत नहीं है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, एंड इट इज नॉट ओनली विद दिस ग्रुप, the 258 people views or 300 odd people in free. अगर मैं DM वाला ऑप्शन ना रखता ना, तो अभी 2000 लोग होते इस ग्रुप के अंदर. ठीक है. कई आपकी बर्बादी देखने आते हैं, कई देखने आते हैं कि आप करते क्या हो. But everyone has an opinion about others, but no one has an opinion of themselves. If one wants to become a good trader, we need to have an opinion on ourselves. Sorry to say Vinny man, इसीलिए, but I mean sorry to say, but that's the reality. I'm not reading the right word. ये कहता है कि 99% of the people lose money. ये आज का स्टेटिस्टिक नहीं है, जब से मार्केट्स बनी है तब से ये स्टेटिस्टिक कंसिस्टेंट है कि 99% ऑफ द पीपल लूज मनी. बट ये क्यों होता है, या मैंने आपको ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कह रहा हूँ, ये स्टेटिस्टिक बना ही ऐसे है, और बना इसलिए है, उसका एक रीजन है कि पीपल डोंट वर्क ऑन देयर माइंड. पीपल जस्ट वांट क्विक फायर ट्रेड्स, पैसे बनाया, दैट्स इट. मार्क ऐसे नहीं चलता, लाइफ डजंट वर्क दैट वे. एनीवे, एनीवन हैज एनी मोर क्वेश्चंस? Anyone wants to ask anything can say, otherwise we'll call it a day. इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, आप लोग भी अभी देखना होगा. डेल्टा को चेक करें ना करें, डेल्टा तो इनबिल्ट ही है. अगर आपको डेल्टा की अंडरस्टैंडिंग है तो डेल्टा तो चेक करें ना करें. एट द मनी ऑप्शन की 0.5 डेल्टा होगा. आपको देखना है आपने कौन सा डेल्टा लेना है. आपने अगर किसी ऑप्शन की डेल्टा 0.5 है तो इसका मतलब हर 1 रुपए के ऊपर आपको 50 पैसे बचेंगे. एंड अगर या सर उसमें मैं भी पूछना चाहता कि लाइक अगर अपन स्प्रेड बना रहे हैं, सो स्प्रेड बनाते वक्त बाई करेंगे तो हम ये देखेंगे 0.5 के आसपास है, और सेल करेंगे तो 0.25 0.3 समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ चेक करना मतलब आप करते हैं, या बेनिफिशियल हो चेक करना? हाँ, मतलब सिंपल है. बेनिफिशियल का मतलब नहीं है इसमें. यह है कि अगर आप, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ना, कि अगर आपने 50 डेल्टा बाय किए हैं और 25 डेल्टा बेचे हैं, तो इसका मतलब हर 1 रुपए के ऊपर आपको 50 पैसे का प्रॉफिट और 25 पैसे का लॉस है. नेट नेट आप डेल्टा जो आपने बाय किया है वर्सेस जो डेल्टा आपने सेल किया है, उसको प्लस माइनस कर लें, वो पैसे बचेंगे आपको हर रुपए पे, 1 रुपए की मूव के ऊपर. सिंपल लॉजिक है. तो इसमें आपकी चॉइस है. आपने ऑप्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पहले से पता लग जाता, आप पता कर सकते हो कि आपको कितने पैसे बचेंगे. फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, डेल्टा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी. तो अगर आपने 0.20 वाली डेल्टा की कॉल ऑप्शन राइट की है, बेची है, तो आपकी 0.20 डेल्टा, तो इसका मतलब आपको 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसे वो जीरो हो जाएगी. 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो इससे ऊपर जा सकती है. तो इसमें कई सारी चीजें, थीटा डिके है, वेगा का रिस्क है, एड अप करते हैं तो हम उसकी पोजीशन बनाते हैं. पर डेल्टा आपको यही बताता है कि कितनी मूव होगी. तो आप पिक कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी अगर मैंने 20 हजार में फ्यूचर 20 हजार की मुझे शॉर्ट मिला 20 हजार पे, और मेरा टारगेट है 19,800 का, तो मैं कभी कभी 19,800 की पुट ले लेता हूँ मेरे टारगेट पे. जब अगर वो पुट से 50 रुपए की है, तो मेरे टारगेट पे जब जाएगी शायद 80-90 की हो जाएगी. वो आप डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर वो 0.3 डेल्टा की है और 200 पॉइंट की मूव आएगी, तो आपको 60 रुपए मिलेंगे. 200 इंटू 0.3. तो सिंपल. बट और सारे, सिर्फ डेल्टा नहीं है, उसमें बाकी ग्रीक्स का भी रोल है. थीटा का डिके कितना है उसमें, और वेगा का रिस्क प्लस माइनस कितना है, गामा कितना है आपका. क्योंकि जब आप खासकर जब आप लास्ट डेज में ट्रेड करते हैं,
जीरो जीरो डेज टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, तो गामा का सबसे बड़ा रोल है, डेल्टा वेगा और थीटा का कम है, so all of these things, not only delta. एंड सर Yep. बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं क्वेश्चन ही पढ़ रहा था, आप बताइए। सर जैसे आपने माइंडसेट का बोला, तो तो माइंडसेट का कहीं मतलब हमको कौन सी बुक्स या मतलब कोई रेफरेंस सोर्स है जहाँ से हम लोग मतलब अपना इम्प्रूव कर सके माइंडसेट? देखो एक प्रोसेस है, मैंने कल एक पूरा आपको एक प्लानिंग की थी, उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, उन टॉपिक्स पे। जैसे मैंने जब पीछे ऑप्शन गॉड किया था, तो ऑप्शन गॉड के अंदर पूरा एक माइंडसेट का पहले 3 महीने 4 महीने आई थिंक माइंडसेट पे ही थे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब तक आपका आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में नहीं है, जबकि आपकी डिसिप्लिन आपको नहीं पता, आपको बायस का नहीं पता, तब तक आप जितना मर्जी सिस्टम सीख लें, आप गलती करेंगे सिंपल एज दैट। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, उनमें से एटलीस्ट 80% ने कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कोर्सेज किया है, ठीक है। तो फिर वो अभी भी डिफरेंट रैंडम ग्रुप्स में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो कोर्सेज उन्होंने किए हैं उससे वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। मैंने जब ऑप्शन गॉड किया था, उसके अंदर माइंडसेट पे भी कई लोगों को बहुत बेनिफिशियल हुआ, कई लोगों को नहीं हुआ, पर कई लोगों को जिनको नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपने उस पर काम नहीं किया, ठीक है। एक बंदे को मैंने राफेल किसी ने किया, तो उसने 1 साल बाद मुझे मिला, आई वोंट नेम दैट पर्सन। तो ही सेड कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं वो रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पा रहा। मैंने प्रैक्टिस कितनी की, कहता मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की। तो अगेन मैं तो सिर्फ एज अ मेंटर सिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, बुक्स से आप एक तरफ से रीड कर सकते हैं। जो मैंने माइंडसेट प्रोग्राम में जितना काम किया है वो इट्स मोर देन 100 बुक्स का एक, और मेरे अपने एक्सपीरियंस का बुक्स जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने यूज किया अपनी लाइफ में, जो थॉट प्रोसेस था, एक वो पूरा एक वो है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमबीए करने जाते हो, आप एमबीए ना करो, वो उन सब्जेक्ट्स के बारे में खुद जर्नल्स पढ़ लो, पढ़ाई तो आप कर लोगे, बट उसका वो जो आपका जो टीचर है वो क्लास में, या जो आपकी बाकी स्टूडेंट्स हैं, और वो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो ऑन द वे, हमें ये भी नहीं ना पता कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं, मैं एज सच मैं कोई ऐसी बुक किसी को रिकमेंड नहीं करता। रीजन बीइंग देयर आर लॉट मेनी टॉपिक्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो एज आई सेड, बट मैंने ट्वीट अपना, सॉरी नॉट ट्वीट बट मैसेज में मैंने एक आपको रोड मैप दिया है, उन टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू करें जो आपको बुक मिलती है, तो धीरे धीरे आप पहुंच सकते हैं। ये मतलब माइंडसेट प्रोग्राम में मैंने क्या ऐड किया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं दी मैंने जो मैं खुद ही बनाई है सब कुछ, यू नो। इट इज टेकन फ्रॉम अ लॉट ऑफ वास्ट रिसोर्सेज, माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे अपनी थॉट प्रोसेस। मतलब हमारा टारगेट क्या होता है कि जो 20 साल मैंने लगाए हैं, जो गलतियां मैंने की हैं, और जो 20 साल में मैंने सीखा है, आपको अगर 20 साल लगाने हैं आप लगा लो, शायद आप 15 साल में कर लो, शायद 10 साल में कर लो, आपने वो लगाना है लगा लो, नहीं लगाना तो आपका एक बना बनाया पूरा स्ट्रक्चर है। एज आई सेड, इट्स 25 to 27 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड मटेरियल, फिर 7 से 8 घंटे का 1-to-1 सेशन। बट अगेन वो आपने उस तरह चलना है। बट एंड ऑफ द डे, चाहे आप बुक्स पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, इट्स आपको अपने पे काम खुद करना पड़ेगा। अगर जो लोग डिसअपॉइंट होते हैं कि हमने यार सीखा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया किसी भी चीज पे। मैं आप ये नहीं कह रहा कि मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा है बाकियों का बुरा है, कोई भी एनीथिंग, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ के अंदर भी। मैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे खाना नहीं बनाना आता था। मेरी मामा ने मुझे कहा कि ये सीख ले वो सीख ले, मैं कहा, कोई नहीं देख लेंगे। तो एरोगेंस कह सकते हो आप उसे। जब वहां पे जाके फर्स्ट टाइम गया तो मुझे सच में रियलाइज हुआ कि यार दैट्स वेरी बैड, कि मैं कितनी देर मैगी पे सरवाइव कर सकता हूँ, या फ्राइज पे सरवाइव कर सकता हूँ, या छोटे मोटे सैलड पे सरवाइव कर सकता हूँ। फिर मैं वापस जब इंडिया गया तो अब मैं आई मीन मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। जिस दिन नहीं बनाता, मैं आई एम माई ओन क्रिटिक, बट मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन ना खाता हूँ ना बनाता हूँ, बट आई कुक रियली गुड वेजिटेरियन फूड। वो मैंने खुद सीखा, ठीक है, यूट्यूब से सीखा, टिप्स लिए, ये वो, आई लर्नड इट माई सेल्फ एंड आई प्रैक्टिस्ड।
अगर मैं YouTube का वीडियो एक बना के, एक रेसिपी बना के वहीं रुक जाता तो रुक जाता, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स आप कोई बुक पढ़ लें, आप कोई कोर्स कर लें, किसी का भी, इट इज ऑल अबाउट what you how you work on it. So what we do is like, जैसे किसी ने मैसेज जो मेरा वो कॉपी किया है, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ, तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। सर वो मैंने वो पढ़ा था, वो मैसेज मैंने ग्रुप में भी पढ़ा था, हाँ अभी भी मैंने पढ़ लिया उसको। हाँ, तो वो मेन बात है। तो हम्म। कई सारे टॉपिक्स हैं। पहले तो आपको अगेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में और यहाँ मतलब एज अ ट्रेडर आपको करना क्या है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में खुश हो, एज ए इन्वेस्टर खुश हो, पोजिशनल ट्रेडिंग में खुश हो, यू कांट डू एवरीथिंग। सब एक पॉइंट है, लोग इसलिए भी प्रॉफिट नहीं कर पाते या दे लूज मनी इज बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर। मेरे को पता है मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मैं हाथ भी नहीं लगाता, ठीक है, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे पता है मुझे ऑप्शंस को बेच के मैक्सिमम प्रीमियम निकालना है उसमें से, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं करने मुझे, नेकेड ऑप्शन भी नहीं बेचनी, बट मुझे स्लीपलेस नाइट्स नहीं लेनी, मुझे डिसीजंस कम लेने हैं, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है ना। आप मोस्टली पीपल डोंट नो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग निगेट कर देते हैं। फिर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती क्या है। हम तो ये कहते हैं पैसा कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इतना रिस्क लूंगा, इतना रिवॉर्ड आएगा। ये ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज जस्ट आई मीन खुश मन की खुशी है। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, आपकी पूरा लाइफ ही बदल जाएगी, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। लाइफ का मतलब जहां पर आपका थॉट प्रोसेस बदल गया कि हाँ यार ये तो मैं पागल था, मैं ये कर रहा था, मुझे तो ये तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब वी वट एवर यू आर डूइंग इट इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, कांट से मच मोर देन दैट। 4 घंटे का सेशन है मेरा सिर्फ इसी पे कि एक्चुअल रिटेल ट्रेडर कर क्या रहा है जो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर बायस है, बायस के पे डिसिप्लिन है, ट्रेड प्लानिंग है। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि पता नहीं चलता कि ब्रेकआउट पे रुक करूं, ब्रेक डाउन करूं, बिकॉज देयर इज नो नहीं था, ट्रेडिंग प्लान। मैं नहीं किया था सर, आपने पूछा ना, तो देयर इज नो ट्रेड मैंने ही प्लानिंग है पूछा ना। था। ओके, तो ये हम्म। प्लानिंग नहीं है trade की। हम बस सवा नौ उठते हैं, मतलब अपना खोलते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप, और मार्केट जैसे मार्केट चलते हैं हम भी वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं, हमारा अपना कोई प्लान नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर जब प्लानिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर उसके बाद आपको समझ आती है कि ये तो ठीक है, बट मार्केट में, लाइव मार्केट में बड़ी केओटिक सिचुएशंस आती हैं। आउट आपने कुछ किया है तो आपने बाय किया, सब कुछ ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू एक बुरी खबर आ जाती है जो आपके ट्रेड के अगेंस्ट है, मतलब उस कंपनी के लिए या उस इंडेक्स के लिए या उस कंट्री के लिए, समथिंग, उस कमोडिटी के लिए। तब क्या करना है, हाउ टू फाइट केओस। केओस इज नॉट ओनली इन ट्रेडिंग। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं किसी से उस दिन भी बात हो रही थी, तो मेन उसको मैंने यही कहा कि हम सोचते हैं कि हम ट्रेडर हैं 9:15 से 3:30 बजे तक, और यहाँ जो भी मार्केट आप ट्रेड करते हो, आपके जो बिहेवियर है ओवरऑल लाइफ के अंदर, वो वैसे ही आप ट्रेडर हो। अगर आप एग्रेसिव गाड़ी चलाते हैं तो आप एग्रेसिवली ट्रेड भी करेंगे, ऑल्दो आपको लगेगा कि इसका उससे क्या लेना देना, बट देर आर, एज आई सेड, क्यों वो 25-30 घंटे के कंटेंट है, बिकॉज ये सारी चीजें हमने कवर की है। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रोड मैप टाइप एक पोजिशन बता रहा हूँ कि आपको किस किस चीज पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जब केओस आता है, 3 बॉडीड प्रॉब्लम, 2 बॉडीड प्रॉब्लम्स आती हैं जब लाइफ के अंदर, तब क्या होता है, ठीक है ना। आप नॉर्मल चल रहे हैं रोड पे, आ, आपको पता है ये रोड है, यहाँ पे टोल है, यहाँ पे रोड खराब है, इतना टाइम लगेगा, ये मेरी गाड़ी है, इसकी इतनी एवरेज है, इतनी देर में मुझे पहुंचना है। दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। उसके बीच में क्या होता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, आपकी फ्लाइट है, आपको ट्रैफिक जैम हो जाता है, दैट्स अ 2 बॉडीड प्रॉब्लम। फिर कभी कभी और एक और हो जाता है, 3 बॉडीड प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, गेम थ्योरी की ऑन इट्स ओन गेम थ्योरी है। एंटी फ्रिजिलिटी, हाउ टू बिकम एंटी फ्रिजाइल। फ्रिजिलिटी क्या है, आपने अगर नासिम निकोलस तालेब की पढ़ी है एंटी फ्रिजिल, तो आई मीन हाउ टू बी एंटी फ्रिजाइल, और एंटी फ्रिजिलिटी होती क्या है, हम और ट्रेडिंग में उसको यूज कैसे करना है। फिर करेक्ट पोजीशन साइजिंग, जो हम पोजीशन साइजिंग नॉर्मली बात करते हैं कि पोजीशन साइजिंग एज कि मेरे पास इतनी कैपिटल है, निफ्टी का इतना मार्जिन है, तो मैं कितने लॉट ट्रेड कर सकता हूँ, दिस इज नॉट पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एज अ पोर्टफोलियो की पूरी बनाई जाती है बेस्ड ऑन द वेरी क्राइटेरियन कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हर एक का डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ एक रूम के अंदर सेम कैपिटल में सेम ट्रेड सेम स्टॉप लॉस मैं दे सकता हूँ,
पर आप सबके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, हो सकते हैं, और वो मैंने प्रूव भी किया। ठीक है, फिर पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज कैसे करना है एज अगर आप, बिकॉज अगेन अगर आप हम रिस्क मैनेजमेंट तक पहुंचे हैं तो हमारी अजम्पशन ये है कि हम रिटेल ट्रेडर अब नहीं रहे। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह सोच रहे हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह अगर जब आप सोचते हैं तो आप बाइनरी नहीं होंगे, 0101 नहीं होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये नहीं होगा कि मैं निफ्टी लॉन्ग हूं या शॉर्ट हूं, बस दैट्स इट, दैट्स अ बाइनरी थिंकिंग। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ बात नहीं मैं कर रहा, बट यू हैव टू कीप डिफरेंट ट्रेड्स ओपन, जहां पे आपको नेट नेट क्या हमारी पोजीशन है और उसको नेट नेगेटिव नेट पॉजिटिव। जब मैं कहता हूँ मेरा पोर्टफोलियो 80% शॉर्ट 20% लॉन्ग है, इसका मतलब होता है कि मेरा मेन ट्रेड शॉर्ट साइड पे है, पर ये मतलब नहीं है कि मैं नेकेड शॉर्ट फ्यूचर्स में हूँ, या मैं अगर मैं मार्केट नीचे जाएगी तो मैं पैसा कमाऊंगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं पैसा गवाऊंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि ओवरऑल मेरे को ज्यादा बेनिफिट इसमें है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मेरी कैपिटल कहीं नहीं जाएगी, आई विल स्टिल मेक मनी, बट आई हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाली नहीं मैं बात कर रहा, जो हर 15 मिनट बाद वो करनी पड़ती है। बट यू नो, सो दैट्स हाउ व्हाट, ये सब तब हो सकता है अगर आप माइंडसेट कंट्रोल करें, और उसमें बायस का बहुत बड़ा रोल है। बायस मैंने एक ही वर्ड में लिख दिया, बायस, वर्किंग ऑन बायस, पर बायस अपने आप में 5 से 7 घंटे का सेशन है, बिकॉज आपको पहले तो रियलाइज होगा कि आपको, और थिंकिंग जिसमें मैंने इसमें डाला, आपने सोचना कैसे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी माइंडसेट के ऊपर, सोचना कैसे, हाउ विल यू थिंक, गुड और बैड, अच्छा बुरा, सही या गलत, जो आपको सही लगता है शायद गलत हो, जो आपको गलत लगता है सही हो, या वाइस वर्सा, जैसे मर्जी आप सोच लें। इसको सोचना कैसे है, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम किया अपना ये प्रोग्राम में, किसी ने मुझे कहा सर सोचना तो हम सबको आता ही है, आपको लगता है कि आपको सोचना आता है, यू डोंट नो हाउ टू थिंक, मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू थिंक। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये बोरिंग भी हो सकता है कोइयों के लिए, बट और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। इसमें 6 से 8 महीने लगते हैं अगर आप बहुत ज्यादा उसके डीपली इसको फॉलो करते हो, तो भी 6 से 8 महीने लगते हैं। ना फॉलो करो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, आपने लेक्चर सुना। और इसलिए जब हम ऑप्शन गॉड भी करते थे तब भी मैं काफी लोगों से बात करता था कि वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, कि अगर आपको ये प्रोग्राम, उस वक्त तो 4 लाख रुपए का प्रोग्राम था, अब तो हम कर नहीं रहे, बट टाइम की चैलेंजेस हैं, उसको पूरा 1 साल लग जाता था। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम टू गो विद पीपल फॉर 8 to 10 months, पहले था अब नहीं है, तो इसलिए वी हैव नॉट डूइंग ऑप्शन गॉड एनीमोर। एनीवे, बट द थिंग वाज कि मैं उनसे पूछता था कि आप क्यों लेकर, कि व्हाई आर यू ट्राइंग, व्हाई आर यू विलिंग टू स्पेंड 4 लाख रुपीस। तो उसमें से भी एज आई सेड, कईयों को रिजल्ट नहीं मिले, कई डिससेटिस्फाइड है। इसलिए डिससेटिस्फाइड है, ये नहीं कि कंटेंट में कमी है, इसलिए डिससेटिस्फाइड है बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्फ। ठीक है ना, तो मसला ये है कि अब यहाँ पे भी एज आई सेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 50 लोग होते हैं या 10 लोग हैं, बट नो वन वांट्स टू डू द बोरिंग स्टफ और नो वन वांट्स टू डू द हार्ड स्टफ। मैं इसलिए एक बात मैं हमेशा पूछता हूँ कईयों, मतलब जिससे भी मैं, जो भी मेरा कोई कोर्स लेता है, कोर्स मींस स्पेशली माइंड वाले या एक्सपेंसिव कोर्सेज में इनरोल करता है, मैं उसे आधा पौना घंटे की चैट जरूर करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन हमेशा होता है, आप लोग जिम, मैं कल भी पूछा था, कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग रनिंग करते हैं रेगुलर, नॉट लाइक जिम की सब्सक्रिप्शन दी है तो हफ्ते में 1 दिन चले गए, या मन किया 4 दिन चले गए फिर 10 दिन नहीं गए, वो वाला नहीं, रियल वर्कआउट जो डिसिप्लिन के है। क्योंकि आप चाहे जितने मर्जी अमीर हो, चाहे आप अनिल अंबानी हो, वो तो रहा नहीं अब अमीर, चलो, मुकेश अंबानी हो या अदानी हो या कुछ भी हो, आप पैसे से अपनी बॉडी नहीं खरीद सकते। चाहे आप स्टेरॉइड्स की बात भी करें, ठीक है जी, हम स्टेरॉइड्स के बाद भी वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा। ऑल्दो मैंने कहता कोई स्टेरॉइड ले, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लोग कोई कहते हैं ना कि डब्बे वाली बॉडी है, आजकल बड़ा है हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो कई ऐसे बात करते हैं ना कि डब्बे वाली बॉडी है। तो डब्बे वाली बॉडी को बनाने के लिए भी वर्कआउट करना पड़ेगा, वो तो सिर्फ आपको एनहांस करेंगे आपके वर्कआउट की क्वालिटी को, यहाँ आपको मतलब और वर्कआउट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बट वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको हार्ड स्टफ करना ही पड़ेगा। अगर आपको माइंडसेट पे जो आदमी जिम जाता है ना, वो माइंडसेट की प्रॉब्लम्स को ये बड़े आसानी से एड्रेस कर लेता है। रीजन उसका ये है
कि जब आप जिम जाते हो तो पहले 2 4 3 दिन तो फर्स्ट टाइम आप जिम जाते हो तो 2 3 दिन आपको लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं, और एक्चुअली वो बॉडी में जो वो आपकी मसल्स में वो थोड़ा सा खिंची होती है तो आपको लगता है। बट आप 10 दिन बाद जाते हो, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जाते हो तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। आप रेगुलर जाते हो पर आपको फर्क नहीं नजर आता। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं उस लेवल के ऊपर। ये मार्केट ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है। सिस्टम्स को लोग थोड़ी देर करते हैं, 3 4 दिन वो वाले रिजल्ट नहीं मिलते तो वो कोई और सिस्टम में चले जाते हैं, कोई चेंजेस ले आते हैं उसके अंदर। तो जब आप 6 महीने रेगुलरली जाते हो, 8 महीने जाते हो, 1 साल जाते हो तो आपको अपनी बॉडी में वो चेंजेस नजर आने लग पड़ते हैं। ऐसे ही माइंडसेट और ट्रेडिंग की ट्रेनिंग है। जो कई कई 2 घंटे का सेशन मेरा अटेंड करो उसके बाद पैसे कमाने लग पड़ो, कर लो, बट मिलेगा कुछ नहीं। आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंसेस वो लिए होंगे, होता नहीं है। ऐसे ही एक नंबर वाले स्टॉप लॉस पे यूजुअली स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है। तो आप किसी तरह से भी देख लो ट्रेडिंग को, माइंडसेट हमेशा आएगा, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, वर्कआउट करना हो, किसी गेम में रेगुलर जाना हो, जो भी करना है अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन से अगर कोई चीज करनी है तो उसमें टाइम लगता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, जो मोस्ट पीपल डोंट वांट टू डू इट, एंड दैट इज व्हाई दे लूज 99% और 90, मैं तो 99% ही कहूंगा। 90% लूज में नहीं, बाकी जो 8 9% है वो कई साल ट्रेडिंग करते रहते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। किसी साल उन्होंने अच्छे पैसे कमा लिए, वो मार्केट के साथ ही हैं, अगर वो ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं तो जब उनकी पोर्टफोलियो बढ़ गया तो वो खुश हैं, थोड़े सालों बाद वो पोर्टफोलियो आधा रह गया फिर वो दुखी हैं। तो आई मीन दैट्स द की। आई थिंक मेरे तो अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ। बहुत सारे कई $multi-million ट्रेडर्स मेरे फ्रेंड हैं, कई $1 billion वाले भी हैं जो अब कई रिटायर हो गए हैं, कईयों को मैं जानता हूँ, कई को फर्म की वजह से जानता हूँ, कईयों के कॉन्फ्रेंसेस में मिला हूँ। बट आई मोस्ट पीपल आर वेरी गुड इन देयर माइंडसेट। सो वर्क करें, ये रोड मैप है, आप उस पे काम कर सकते हैं। बुक्स तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हैं, आप एक सर्च करेंगे आपको 20 मिलेंगे। सर वन लास्ट थिंग। या तो सर जैसे आपने बोला कि मेरे को जैसे पता नहीं, तो मैं मतलब मेरे को जैसे जब मैं मोस्टली अभी तक मैं इंट्राडे ही ट्रेडर था, मैं मोस्टली अपने सौदे दी एंड पे काटता ही था और मैं ओके इंट्राडे ही ट्रेड करता था कि, ओके और मेरा यही माइंडसेट, मैंने कोशिश ऐसा ही करता था कि मैं डेवलप करूं कि मैंने ड्यूरिंग द डे ही मैं ये सोचता था कि अपने को ट्रेड, बहुत रेयर ऐसा होता था कि आई टेक द ट्रेड टिल नेक्स्ट डे, राइट दैट टू 50% ऑफ द पोजीशन। अगर मैं मतलब प्रॉफिट साइड है तो 50%, लॉस साइड है तो भी मैं कैरी कर लेता था बिना मर से कि चलो, ओनली इन द होप, राइट ओनली इन द होप, कोई उसमें एनालिसिस नहीं होता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे से कट नहीं रहा होता था वो सौदा। राइट दूसरी चीज ये थी कि लेकिन मैं उसको अभी मतलब अब मैं उसको छोड़ना चाह रहा हूँ। उसका प्राइम रीजन है, एक तो लॉस मेकिंग है, वन बैड डे एंड योर वीक्स प्रॉफिट इज आउट, और 2 वीक्स प्रॉफिट, इवन समटाइम्स मंथ का प्रॉफिट भी चले जाता है। तो वन बैड डे और वो पूरा मतलब उसको फिर बचा नहीं पाते, वन बैड डे और वो खत्म हो जाता है। दूसरा उसमें स्ट्रेस बहुत है सर, टू सबसे मच बड़ी स्ट्रेस, बात। बिकॉज हाँ, और वो हेल्थ लेता है, बाल उड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। हम्म। नहीं, क्वेश्चन क्या है वो तो मैं जानता हूँ, दैट्स तो व्हाट इसी में सब। मेरे को मैं पूछा था सर, ये ट्रांजिशन के लिए मतलब कैसे कर सकते हैं इस ट्रांजिशन को, क्योंकि ये मेरा जैसे आपने बोला ना पर्सनैलिटी वाली बात, वो टोटली एग्री, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी भी थोड़ा उसी तरह का है कि मैं तो जो अगेन काम करता हूँ वो जल्दी जल्दी करता हूँ। हाँ, वो खाना खाना एक्चुअली है, थोड़ा ड्राइव करना है, वो वॉक सारा करना है, तो वो हम्म पार्ट ऑफ सिस्टम होता है। वो आप ज्यादा देर किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते। आई मीन चैनल फ्लिप करते रहोगे, रील्स ज्यादा देखते होगे, उसको आगे से आगे स्क्रॉल करते रहते होगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देख सकते। अगर आपको मैं कहूँ ना 2 घंटे की क्लास है तो नहीं आप सर, नहीं लगा उसमें ऐसे अगर मैं बैठा हूँ सिंसियरली कुछ करने के लिए तो मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ। अदरवाइज नॉर्मल टाइम में ऐसा है, रील्स वगैरह मैं बहुत कम देखता हूँ, लाइक आई एम टोटली अवे फ्रॉम इंस्टा एंड ऑल। मैं सकते। खोलता ही नहीं कभी उनको, मेरे पास है ही नहीं वो ऐप वगैरह। की बात है। मेन वो बात है अगर देखो, यूट्यूब है, यूट्यूब यूज करता हूँ। हाँ वो दैट्स फाइन। मतलब मैं देखो इसमें कोई हम्म, गलत या सही नहीं है, ये नेचर होती है हर एक की ना, हम्म, इट्स नॉट अ राइट और रॉन्ग। हम्म, लोग ट्रेडर भी होते हैं, मार्केट है, ठीक है। मतलब फैशन अगर एग्जांपल दूं, अगर हर एक कोई मेरे सिर्फ 2 या 3 कलर्स ही हैं जो मैं पहनता हूँ, मैं ब्लैक, ब्लूज और ग्रेज पहनता हूँ।
मैं ज्यादा लाइट कलर नहीं पहनता, मैं फ्लैशी कलर्स नहीं पहनता, मैं आपको ग्रीन्स नहीं पहनता, लाइट पिंक स्पीच ऐसी कलर्स नहीं पहनता। ये दैट इज मी, राइट? बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ये कलर अच्छे लगते हैं, ठीक है? क्योंकि और वो ऐसे ही चलती है। इंडिया से जब फर्स्ट टाइम कोई आता है तो लोग कहते हैं यार यहाँ इतनी वाइट गाड़ियां क्यों हैं? आप दूसरी कंट्रीज में जाओगे हर तरह की गाड़ी कलर मिलेगा आपको। अगर फैशन, अगर ये ना होता, अगर लोगों की सोच एक ही जैसी होती, पसंद एक ही जैसी होती, तो लोग तो फैशन होता ही ना, फिर सारी दुनिया में ब्लैक या ब्लू कपड़े ही बनते, या ठीक है? तो ये चॉइस होती है। अगर सारे ही प्रोफेशनल हो जाएं तो फिर दिन में ट्रेडिंग कौन करेगा, ठीक है ना? तो हर तरह के लोग हैं। आपको जो, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये स्ट्रेस ऐड करती है, आपको हमेशा स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है। और यस सर। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं हमेशा कहता हूँ आप मैकडोनल्ड्स पे जाएं, तो कहीं भी दुनिया में मैकडोनल्ड्स में चले जाएं, आपको यंग बच्चे ही मिलेंगे, आपको कोई ज्यादा एज्ड बंदा वाला अबव 25 27 30 के नहीं मिलेगा। इंडिया में शायद मिल जाए, बाकी में नहीं मिलेंगे। 25 काउंटर की बात कर रहा हूँ मैं, मैनेजर होगा बट नॉट। आप अभी तो जीरोधा का जमाना है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जमाना है। जब पुराना 10-15 साल पहले ब्रोकर्स की ऑफिस में जो बैठते थे, जो डीलर्स होते थे वो भी लड़के यंग ही होते थे, जिनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता था, या तो वो खुद ब्रोकर बन जाता था या और यहाँ लड़के अपनी हायर करके अपनी दुकान खोल लेता था। वो रीजन क्या है? वो जो डीलर है वो खुद तो सौदा नहीं ले रहा ना, तो रिस्क ले रहा है। आप गलत सौदे का रिस्क है ना, उसकी उतनी सैलरी नहीं है जितने का लॉस वो हो सकता है एक लॉट में अगर वो गलत डालें। तो ही इज ऑलवेज अटेंटिव। मैकडोनल्ड्स वाले भी अगर उसने आपने कहा मैक स्पाइसी पनीर, उसने दे दिया मैक स्पाइसी चिकन, तो वो लड़ाई हो जाएगी वहां। तो दे हैव टू बी वेरी अटेंटिव, है ना? बट इस अटेंटिव वो सेम इंट्राडे ट्रेडर वाला हाल है। इंट्राडे ट्रेडर अटेंटिव रहेगा, वो हमेशा अपना फोकस्ड रहेगा। तो मतलब ये है, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे लाइफ में, दिन में। हमारा माइंड इतने ज्यादा डिसीजन ले नहीं सकता, थक जाता है, ठीक है ना? अब मुझे कोई कहता है कि मैं 24 आवर वाली मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ, क्रूड ऑयल, नैस्डैक, ईएस, कभी कभी हैंगसेंग, निक्केई, डैक्स, फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। मैं इंट्राडे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मतलब पागल हो जाऊंगा, इतनी सारी मार्केट्स को, इतने सारे डिसीजन से। यू कांट डू इट। बट मैं ये भी बात कहता हूँ, आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। बहुत लोगों से मैंने बार पूछा है कि एक्चुअल में, रियल, नॉट ट्विटर वाले नहीं, पर आप कभी की आपको पता है कोई ट्रेडर, बिलियनियर या मल्टी मिलियनियर ट्रेडर जो एक्चुअल, जो इंट्राडे ट्रेड करके बना? ट्विटर के छोड़ दो, वहां पे सारे ही मल्टी मिलियनर है रियलिटी में, लाइफ में, ठीक है? वो ट्विटर वालों की यूट्यूब इनकम है, ठीक है ना? तो बट वो रीजन क्या है? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डिसीजंस टू बी मेड एवरी सिंगल डे। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, और जितनी वॉलेटिलिटी है बंदा पागल हो जाता है। तो दैट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट अ लाइफ टू लिव इन। तो मेन ये है कि टेक अपने एनालिसिस को चेंज करें। आई डोंट नो आप क्या एनालिसिस करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। जो एनालिसिस है उसको, उसकी टर्म बढ़ाएं, 1 घंटे 4 घंटे वाले चार्ट्स, एक दिन वाले चार्ट्स पे ज्यादा आए, उसके बेस पे ट्रेड लें। रिस्क अपना ऑप्शन, अपना ऑप्शन कह रहा हूँ, स्टॉप लॉसेस को बढ़ा कर रखें, ट्रेड लें, उसके बेस के ऊपर पोजीशन साइजिंग बनाएं, उसको हेज अकॉर्डिंगली करें ताकि कुछ भी हो जाए आपको मेजर लॉसेस ना हो। दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू इंट्राडे। जैसे तो आप ब्रेकआउट्स या रिवर्सल्स ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, तो आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे ट्रेड्स। तो आप बस उस पर ट्रेड करें और इंट्राडे की नॉइज से दूर रखें। स्टॉप लॉस, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। जब स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो रिस्क ऑफ हिटिंग, तो इंट्राडे नॉइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? तो दैट्स इट, आई मीन दैट्स द चेंज दैट यू नीड टू मेक। ओके सर, थैंक यू सर। और सर हेल्थ का जैसे आप बात बोल रहे थे ना, इम्पैक्ट होता है, तो मैं सिर्फ इसमें कोट करने के लिए बोलूंगा कि लाइक यू हैव अ बैड डे, पर्टिकुलर इंटरडे में कभी खराब दिन हुआ, तो व्हेन यू कम इवनिंग में, फिर आपका एक्सरसाइज का या जिम का या कहीं पे भी मन नहीं करता, कोई भी आप कोई भी स्पोर्ट कर रहे हो या कोई भी इवन सोशलाइज करने का भी मन नहीं करता है, तो हाँ, वो वो फिर हेल्थ पे आपको इम्पैक्ट उसका आता है। एक जो साइड से जो आप गेन कर रहे हैं, एक साइड से जो जी आप सर। हेल्थ, मतलब जिम जाके अंदर से बंदा फील गुड फैक्टर जो आता है, वो यहाँ से निगेट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि अगेन माइंड थकता, बॉडी नहीं थकती। बॉडी थकेगी तो अच्छी नींद आएगी,
बॉडी नहीं थकती, माइंड थकता है। क्योंकि आप देखिए ना, जो मजदूर है या कोई लेबर है, उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं है, उसका उसने दिमाग नहीं लगाना, दिमाग वाला जॉब नहीं है, ठीक है ना। दिमाग वाला जॉब नहीं है, उसको तो सिर्फ ये चीज यहाँ से उठा के वहां रखनी है। जो कंपनी चला रहा है उसको स्ट्रेस है कि उसने मजदूरों को भी देखना है, उसे सब कुछ देखना है। ऑल्दो वो एसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, ऑल्दो मजदूर पसीना बहा रहा है, पर मजदूर की लाइफ अपना बाय माइंड उसकी लाइफ वे बेटर है। पैसा कम है ठीक है, उसके बाद लग्जरी कम है, बट उसकी माइंड की इजी है। वो धूप में भी बैठा है, वो मतलब वो हंस खेल भी रहा है, एंजॉय भी कर रहा है। पर जो सीईओ ऑफ द कंपनी है, तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि उसने इतने सारे एवेन्यूज मैनेज करने हैं। ऑल्दो उसके पास बढ़िया गाड़ी भी है, बढ़िया घर है, सब कुछ है उसके पास, बट उसको स्ट्रेस फिर किस बात का है? स्ट्रेस इसी बात का, बिकॉज माइंड थक जाता है। इंटरनेट ट्रेडिंग में माइंड थकता है, ठीक है ना। बॉडी आपको जो पोजिशनल आप ट्रेड करते हैं उसमें आपका माइंड नहीं थकता। जब आपका माइंड नहीं थकता तो क्लैरिटी आती है। उसके साथ आप अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रही है। जब आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव आ रही है तो रिलैक्स, आपको कामनेस आ रही है। जब कामनेस आ रही है तो ठीक है, एक दो बार आपको टेस्ट करेगा, बट उसके बाद इवेंचुअली आपको वो ठीक ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार डिसीजन नहीं लेना। आपने एक निफ्टी सेल कर ली, तो आपने सेल की, आपका एक स्टॉप लॉस है। अब वो दिन में 20 पॉइंट घूमे, 50 पॉइंट माइनस होके 30 पॉइंट आप हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं। आपने बेची है, आपने एक स्टॉप लॉस डाल दिया, दैट्स इट। यहाँ उसको हेज कर लिया, व्हाटएवर यू डू, देन यू डोंट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन ऑल द टाइम। बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तब स्क्रीन के पास सामने बैठना भी इंजॉय करेंगे, बिकॉज आपको हर 20 पॉइंट में टेंशन नहीं होगी। So that's, I think, the benefit. But यस सर, क्योंकि एक एक वन लार्ज कैंडल 15 मिनट की एक कैंडल हुआ एंड यू आर इन पैनिक, और फिर वो पूरा दिन फायर फाइटिंग में निकलता है, एक्सट्रीम फायर exactly, फाइटिंग, क्योंकि वॉलेटिलिटी कभी भी मतलब फॉर 2 आवर्स कोई मूवमेंट नहीं था, रेंज में था। एक कैंडल ने पूरा इतना वॉलेटिल आया कि फिर आपको 3:30 बजे तक फायर फाइटिंग ही चलता रहा। वही है ना। वो तो ब्रोकर के लिए है सारा। वो तो आप पैसा उसके लिए, गवर्नमेंट को ब्रोकरेज में, चलो आप कह रहे हैं, आजकल ब्रोकरेजेस बहुत कम है, आप ये गवर्नमेंट के लिए पैसा कमा के दे रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी, ये वो जितनी भी ड्यूटीज हैं। सो आई मीन, मुझे वो कहता है ना कि आज अभी मेरे कई जो ब्रोकर ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएस में भी हैं, कई एक्सपेंसिव ब्रोकर्स हैं, पर मुझे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कौन सा दिन में 10 ट्रेड करने हैं, पता नहीं, मुझे एक ट्रेड दिन में ही नहीं चलाना है, ठीक है ना। तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा ब्रोकरेज भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने एक लॉट से $20,000 कमाना है, तो अगर वो $100 की जगह, मतलब $50 की जगह $70 ब्रोकरेज ले लूंगा, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ये माइंडसेट है, ये थॉट प्रोसेस है। पर अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स दिन में लेते हो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट अगेन इट्स अ चॉइस। इट्स नॉट, यहाँ पे गलत और सही नहीं है। अगर कोई मैनेज कर सकता है तो कर ले। मैं नहीं मैनेज कर सकता, मैं करना नहीं चाहता। ये नहीं, दिन में कभी कभी ट्रेड्स आते हैं जो मैं प्रीमियम में हम लेते हैं, तो उसी दिन बुक कर देते हैं, दैट्स फाइन। पर मेरा टारगेट ये नहीं था कि मेरे को आज ही बुक करना है, ठीक है। दैट कम्स विद इट्स ओन कंफर्ट। एक दिन अगर अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप ले भी लेते हो, बट दैट्स फाइन। बट अगर आप सोच के ही आए हो कि यार अब 2 घंटे रह गए मार्केट बंद होने को, अगर ये नीचे आ गया, ये जितनी आप चैटर माइंड में चल रही है, ये भी डिसीजन ही है ना। आपस में चैटर चल रही है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप हर जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको लिखो, और ग्रामर साथ में उसकी यूज करो कि कौन सा क्वेश्चन है, तो माइंड इज फाइटिंग विद मल्टीपल क्वेश्चन, दूसरी साइड से आंसर्स आ रहे हैं, तो धीरे 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 माइंड थकता जाता है ना। थकता जाता है तो वो हेल्थ पे ऑफकोर्स फर्क तो पड़ेगा। यस सर, और सर यह इसी का रीजन ये हो सकता है कि मतलब फ्यूचर्स ट्रेड मतलब वो मेरा एपेटाइट नहीं है, मतलब मेरे से होता ही नहीं है, क्योंकि देयर आर टू मेनी बटरफ्लाइज अगर फ्यूचर्स के ट्रेड में मैं होता हूँ तो। अगेन डिपेंड करता है ना कि आप क्या, किस तरह से आप, ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है। माइंडसेट को तो हमने हम्म, चेंज कर लिया कि मैं कंफर्टेबल हम्म, नहीं हूँ, पहला हमने टिक कर लिया कि मैं हूँ। तो जब मैं रोड मैप में पहला यही है ना, हु एम आई, तो अब आपने डिफाइन कर हम्म, लिया कि भाई इंटरडे मेरे बस की बात नहीं है, चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट आए या लॉस होए, मेरे से होता नहीं लॉन्ग ज्यादातर, तो मैं उस तरफ देखता ही नहीं। तो फिर मेरे को स्ट्रैडल, ओके, स्ट्रैंगल, वीकली एक्सपायरीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आपका एक विजन अलग हो जाता है, फिर आपका आता है एनालिसिस पे। फिर आप 15 मिनट, 5 मिनट के चार्ट से आप एक चार अपना डेली चार्ट, 1 आवर चार्ट और 15 मिनट चले जाते हो। 15 मिनट सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए होता है, एनालिसिस के लिए डेली और आवरली होता है।
तो आप वो लेते हो, उसमें एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है, आपने लिया सौदा, स्टॉप लॉस लगा लिया, हिट हो गया, नहीं तो नहीं हो गया, अगले दिन ले जाना है उसको, हेज कर लो, कॉल बेच लो, कॉल ले लो, समथिंग जैसे भी हेज करना है कर लो। तो इजी है, कंपैरेटिवली लेस डिसीजंस, मोर क्लैरिटी थॉट ऑफ थॉट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, जो आपने टाइम निकाला संडे के दिन। That's fine. The question is SIP in mutual fund good option for long term because I am doing it for, अगर आप 7 साल से कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, लॉन्ग टर्म में तो हमने सबने मर जाना, इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। ज़्यादा बोझ मत डालो, जो चल रहा है उसको चलने दो, अगर ठीक रिटर्न है तो ठीक ही है, तो इसमें क्या दिक्कत है, ज़्यादा सोचो मत इसमें। म्यूचुअल फंड में अब 7 साल दे ही दिए हैं, अब 3 साल और दे लो, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक ही है, म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्रिप्टो अभी तो डेड है, नथिंग्स हैपनिंग इन क्रिप्टो, क्रिप्टो में कुछ भी नहीं है अभी। अगर आपको एक रेंजेस में ट्रेड करना है तो कर लो, अभी कोई ब्रेकआउट्स आए नहीं, मेरे पास अच्छी पोजीशन है क्रिप्टो में, पर मोस्ट ऑफ देम आर डाउन फ्रॉम 40 to 50%, और कई जो बहुत पहले ली थी BTC और ETH अभी भी प्रॉफिट में है बिकॉज वो बहुत नीचे के हैं, कई ऑल्ट कॉइन्स लॉसेस में है, पर मैं वो देखता नहीं। क्रिप्टो में उतना इन्वेस्ट करो जितना, अगर वो जीरो भी हो जाए ना तो ज़्यादा आपको बोझ ना पड़े, मेरी ये एडवाइस है क्रिप्टो के लिए। साइकिल है, कभी आएगी वापस साइकिल की नहीं ये भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, शायद कभी भी क्रिप्टो वापस ना आए शायद, बट यू हैव टू लिव विद इट बिकॉज एक उसमें थोड़े से पैसे लगाए, जैसे 2% ऑफ योर कैपिटल, 3% ऑफ द कैपिटल, मैक्सिमम 5% ऑफ द कैपिटल, बिकॉज वो 5%, 5 से 4% हो सकती है। ये है क्रिप्टो की खासियत, ये है कि वो $1 वाला कॉइन $200 हो सकता है, और हमने सोलाना वगैरह में देखा है ऐसे, बिटकॉइन में भी, इथेरियम में भी, सोलाना में भी, एवलांच में भी, इन कॉइन्स में हमने देखा। बहुत सारे और भी कॉइन्स हैं जिनमें बहुत बहुत ज्यादा, मैं एलरॉन मेरा फेवरेट कॉइन है, सोलाना भी मेरे पास अच्छी होल्डिंग है, पर सोलाना मेरे पास $6 की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और $200 भी चला गया, 100 कुछ डॉलर, तो एलरॉन मेरे पास $12 की है, वो $400 भी चला गया। बट ये वही, ये मतलब क्रिप्टो में छोटा सा एक्सपोजर, बिकॉज कोई चैटर है गवर्नमेंट की है, तो 5% आपका जीरो भी हो जाए तो आपको ज्यादा बोझ ना हो, इतना ही पैसा डालें, पर वो $5 आपके 5% आपकी 100% कैपिटल के बराबर हो सकती है, ये उसमें चांस है, सो उसमें ग्रीडी मत हो, बट इन्वेस्टमेंट्स वाले हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री है थोड़े से सालों की, अब फिर से वहां जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, बिकॉज अब बहुत लोगों में अवेयरनेस है, बहुत सारे लोगों के पास है, जब चले थे तब किसी के पास था नहीं, लोगों को पता नहीं था वॉलेट क्या है ये वो, तो अगेन मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं उतना ही डालता हूँ कि अगर वो कल जीरो भी हो जाए तो इट डजंट हर्ट मी बियॉन्ड अ पॉइंट, so that's how it is. Any more questions, anyone? If you have, I guess not. If not, then we'll call it a day. I guess not. So enjoy yourself. Have a good evening. कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है. See ya. Take care. No worries.